morning to all. I hope once again you all will sit at your home. So this is Tripti Khare. Welcome back in my class, your SST teacher. As you all know, we are coming to complete our chapter according to the section wise, and history, geography, and the civics. So same today also I am going to be teach history portion. Okay, your third chapter of history I am going to be explain you. Okay, so as you know that before starting the chapter I want to explain once again to you that in index have given in your book first page only, that you will see there first to 12th chapter have given of this history section. Okay, 13 to 21st chapter have given your geography chapters and geography sections, and 23 to 31 have given your civics portion. So section wise we are coming to complete our chapter. Okay, as history also, civics also, and geography also. So today I am going to be teaching history third chapter. Already two chapters I have explained you. Now today I am going to be third chapter of history to explain you. So your third chapter of history is the seeds of revolution. Revolution means in the geography lecture I have explained you revolution. It means ki circle, when we take the round around the sun, है ना, that. So here the revolution means एक पॉइंट से हम जब स्टार्ट करते हैं कि किसी भी चीज को, वहां से हमें क्या करना है, डेवलप होते 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 आगे को बढ़ना है ना. तो यहाँ रिवॉल्यूशन का मीन ये होगा. ओके, द सीड्स ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब कि एक पॉइंट से, एक सीड्स में बीज होता है ना, मतलब किसी भी कोई भी पेड़ जब ग्रो करता है, प्लांट ग्रो होता है, जनरली हम सबसे पहले सीड्स प्लांट करते हैं ना, फिर वो धीरे धीरे ग्रो होता है, फिर वो किस में कन्वर्ट होता है, ट्री में कन्वर्ट होता है. सेम एज हमें इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, और हाउ वी हैव डेवलप्ड दैट वी हैव टू read in this chapter. So in the last lecture of history I have told you we have already taught about the age, stone age, है ना, Paleolithic age, Mesolithic age and Neolithic age. So Paleolithic age and the Mesolithic age already I have explained that chapter. So in the third chapter we have to read about the Neolithic age. Okay, so we will start. So your this chapter is based on the Neolithic age. We have to read about the Neolithic age. So the Neolithic age was the last phase of the Stone Age, है ना. Last phase था उसका Stone Age का. First stage क्या था, Paleolithic age, then the second stage था Mesolithic age, then third था Neolithic age. So we have to read in this chapter about the Neolithic age, है ना. So last stage था. During the Neolithic age, a variety of developments result in the tremendous change in the lifestyle of the early humans. जो early humans थे उन्होंने जहाँ से start किया था, Paleolithic age से start किया था, तो Neolithic age तक total development वो क्या कर चुके थे, हो चुके थे. टोटल उन्होंने खुद को भी डेवलप कर दिया था, एंड दे हैड डेवलप्ड देयर लाइफस्टाइल आल्सो, है ना. ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन बिगन टू सेटल डाउन एंड द स्टार्टिंग फार्मिंग. इन दिस एज what the early men have done, they have settled down, वो already settled हो चुके थे, and they have started the farming and the cultivation, है ना. उन्होंने क्या कर दिया था, cultivation farming को start कर दिया था. Okay, they also domesticate the cattle, horses and the other animals. उन्होंने क्या start कर दिया, domestication start कर दिया था. domestication means animals को घर में रखना, पालना, है ना. तो दैट इज डोमेस्टिकेशन. तो उन्होंने कैटल में हॉर्स, जो कैटल छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनको, हॉर्सेस को, है ना, उनको क्या करना स्टार्ट कर दिया था, डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया था. देन दे नाउ हैड द कंटिन्यू सप्लाई ऑफ मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड द मीट. फिर वो क्या करते थे, उनको जो मिल्क मिलता था, है ना, मीट्स मिलते थे, उनका प्रोडक्ट बनाते थे और उसको क्या करते थे, सेल करते थे. इट मीन्स न्यूलिथिक एज में टोटल डेवलपमेंट हो चुका था, एंड दे आर डेवलपिंग एज सुन एज, है ना, वो और भी डेवलप क्या करते जा रहे थे, करते जा रहे थे खुद को. Okay, so another important invention of this period was the wheel. Improved stone tools such as the blades, bullions were used. और in this stage, Neolithic age, most important invention हुआ था wheel का, है ना. So I will ask you कि wheel का invention किस एज में हुआ था, है ना. So you will say the answer Neolithic age में. Neolithic stage जो थी उसमें wheel का invention हुआ था. ठीक है, tools को use करके, जो stone tools थे उनको use करके, bullions को use करके उन्होंने क्या किया था, use किया था. These blades were too sharp and their surface as smooth that is difficult to replicate them in a modern times, है ना. तो क्या था, वो बहुत शार्प टूल्स होते थे जिनको उन्होंने व्हील्स वगैरह में यूज किया था, है ना. और वो कल्टीवेशन फार्मिंग में भी शार्प टूल्स का यूज करते थे, विच वे हैव मेड बाय द स्टोन्स.
Okay, due to these far-reaching changes, the phase has also been termed the Neolithic Revolution. और ये फार्म जो हुई थी, मतलब फार्म रीचिंग हुई थी, मतलब दूर दूर तक जो पहुंच रहे थे, स्प्रेड हो रहे थे इनके टूल्स, इनका डेवलपमेंट, ठीक है, वो क्या हुआ था, न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन के नेम से जानते हैं. बोलेंगे न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन क्या था, दैट क्या था वो, कि उन्होंने एक पॉइंट से डेवलपमेंट स्टार्ट किया और इसको डेवलपमेंट को स्प्रेड करते गए. ओके, नाउ second point is Neolithic revolution. In this para, humans saw the seeds of farming. है ना, अगर उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की, अर्ली मैंस ने कल्टीवेशन स्टार्ट किया, तो बेसिकली उनको कहीं से इस चीज का आइडिया होगा कि फार्मिंग कैसे होती है, या उन्होंने कहीं पे इसको देखा होगा, सॉ किया होगा, है ना, कि कैसे सीड्स को हम वो करेंगे, है ना, और वो कैसे ग्रो होंगे, क्या नीड होगी उनकी ग्रो होने में, है ना. तो ये सब जो था इस एज में देखा गया. So we will read this para. The transmission from the hunting gathering, the lifestyle is one of the cultivation did not take place suddenly. जब वो hunter gathering करते थे, मतलब वो करते थे, शिकार करते थे, तो जो फार्मिंग था वो एक इजी स्टेप नहीं था कि हम जनरली हंटिंग करते हुए टोटली फार्मिंग की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं था, है ना. इट इज नॉट नो द फार्मिंग वॉज डिस्कवर्ड, पता ही नहीं था कि फार्मिंग क्या थी, डिस्कवर्ड हो चुकी है. एक जनरल जैसे फायर का एक्सीडेंट, मतलब वो एक्सीडेंटली इन्वेंशन था फायर का, ऐसा सेम इसका भी था कि ये एक्सीडेंटली इसको देख लिया गया कि ऐसा हुआ, तो इससे फार्मिंग होती है ना, प्लांट्स होते हैं, ग्रो करते हैं, ट्री में कन्वर्ट होते हैं, देन वी गेट द फ्रूट्स एंड द लीव्स वट एवर वी नीड, है ना. सो perhaps one day the early human threw some seeds on the soil and were amazed to see that plants sprouted from there. क्या हुआ एक दिन कि जो फ्रूट्स होते हैं, है ना, जो वाइल्ड फ्रूट्स वगैरह होते हैं फॉरेस्ट वगैरह में, तो जनरली दे ईट एट, एंड उन्होंने वहीं पे थ्रो कर दिया, फेंक दिया, है ना. और उन्होंने क्या देखा कि जो उसके सीड्स थे वो सॉइल में मिलकर क्या हो रहे थे, स्प्राउट हो रहे थे, क्योंकि अगर उनको वाटर मिलता है, क्लाइमेट चेंज होता है, उनको वाटर मिलता है, तो सीड क्या हो जाते हैं, स्प्राउट हो जाते हैं, मतलब फूटते हैं और वो निकलते हैं, प्लांट उनमें से निकलता है, ग्रो करते हैं वो सीड से. तो उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया, ठीक है. सो इट इज बिलीव दैट फार्मिंग बिकम अ वे लाइफ एज अ क्लाइमेट बिकम वार्मर, ठीक है. तो जैसे क्लाइमेट चेंज होते गए, उसको जो उसकी बेसिक नीड थी ग्रो करने में, उसको मिलती गई, और वो प्लांट से ट्री में कन्वर्ट हुआ, ट्रीज बना, तो उसको फ्रूट्स मिले, है ना, लीव्स मिली, ब्रांचेस थी उनकी, बाग्स थी उनकी, जिसका अर्ली में क्या करते थे, यूज करते थे अपनी बेसिक लाइफ्स में, मतलब अपनी नीड्स में, बेसिक जो नीड्स थी उनको फुलफिल करने. ओके, देयर वाज द ग्रेट डिमांड ऑफ द फूड दैट विच कुड नॉट बी met by the hunting and the gathering alone, है ना. एक बेसिक नीड थी, एक बहुत बड़ी नीड थी, जो कि एक हंट करने में, मतलब हंटिंग करने में, है ना, हंटिंग गैदरिंग करते थे, शिकार करने में वो फुलफिल नहीं होती थी फूड की, जो कि फार्मिंग करने से उनको उसकी पूरी फुलफिल हो गई वो नीड, है ना. सो पीपल स्लोली लर्न द टेक्निक of sowing seeds and growing plant and finally harvesting them. So slowly they learn कि कैसे फार्मिंग की जाती है ना, कैसे उसको स्प्राउट किया जाता है, कैसे उसको वो किया जाता है, ठीक है, सोइंग किया जाता है जमीन के अंदर, फिर वो कैसे स्प्राउट बनता है, फिर प्लांट में ग्रो करता है, प्लांट से ट्री में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, फिर हमें वो चीजें मिलती हैं. ओके, सो इंस्टेड दे कुड नॉट बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस बट दे दैट वर परमानेंट and would give them protection and the shelter, है ना. तो इससे क्या हुआ था कि उनको बेसिकली क्या चीजें मिल गई थी, शेल्टर्स वगैरह के लिए बनाने के लिए ब्रांचेस वुड का यूज करने लगे थे, तो उनको एक परमानेंट क्या मिल गया था, रहने के लिए प्लेस मिल गया था, और उनकी जो उनको सोर्सेस चाहिए थे वो उनको जनरली, मतलब इजीली क्या होने लगे थे, प्रोवाइड होने लगे थे, मिलने लगे थे. ओके, नाउ the first plant cultivation during the Neolithic age were wheat, barley, figs, oats and the tall grasses. जो first planting हुई थी Neolithic age में, जो first time farming की गई थी, cultivation हुआ था, उसमें wheat का हुआ था, barley का हुआ था, figs का हुआ था, oats का हुआ था और tall grasses का हुआ था. Okay, once grain were cultivated, they need to be stored. Hence, granaries were constructed which allow to these grains to be collected and stored for long period time. जब उनको ये चीज मिलने लगी तो उनको मतलब रियलाइज हुआ कि हमें इसको स्टोर करके भी रखना है ना, तो वो उसको स्टोर करके रखने लगे हैं, जैसे वेयर हाउसेस वगैरह होते हैं, है ना, और
हम बोल सकते हैं हिंदी गोदाम्स वगैरह होते हैं, तो उनमें हम क्या कर सकते हैं करते हैं ग्रेन्स वगैरह को क्या करते हैं स्टोर करके रखते हैं। तो उन्होंने ग्रेनियर्स का वो बनाई थी, ग्रेनियर्स बोलते थे वो गोदाम्स वगैरह को, ग्रेनियर्स के नेम से बोलते थे। तो उन्होंने ग्रेनियर्स बनाई थी और उसमें वो क्या करते थे वीट्स हो गई, बर्ली हो गई, उनको क्या करते थे स्टोर करके कलेक्ट करके रखते थे, ताकि जब क्लाइमेट चेंज होगा या उनकी कल्टीवेशन अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट नहीं हो पाएगा तो उस समय वो उन चीज़ों को क्या करते थे यूज करते थे। Okay, so which allowed these grains to be collected then stored in the long period of time. Thus, from food gatherers and Neolithic people now become food producer. और वो क्या करने लगे इसके थ्रू फूड प्रोड्यूस भी करने लगे, बहुत से मिल्क से वो कुछ चीज़ों को बनाने लगे, मीट का बना के वो चीज़ों को क्या करने लगे स्टोर करने लगे। तो वो क्या होगा न्यूलिथिक एज के जो अर्ली मैन्स थे जो डेवलप्ड हुए वो फूड प्रोड्यूसर्स के नेम से जाने लगे। हम बोल सकते हैं जो अर्ली मैन वहां से आए थे वो न्यूलिथिक एज में आते आते फूड प्रोड्यूस करने लगे, है ना, तो उनको हम फूड प्रोड्यूसर्स बोलेंगे। So Neolithic sites have been found in the Mehergarh present day in Pakistan. पाकिस्तान में जो मेहरगढ़ प्लेस है Neolithic sites हमें वहाँ पर मिलती हैं। Okay, which show trace of the wheat and the barley cultivation and evidence of the herding of sheep, cattle and the goats. ठीक है, वहाँ पे हमें एविडेंस मिलते हैं बर्ली के और जो वीट को जो उनके कल्टीवेशन होता था उसके, एंड जो डोमेस्टिकेट करते थे गोट्स का शीप्स का, तो उसके भी एविडेंस मिलते हैं कि न्यूलिथिक साइट्स में ऐसा किया जाता था। ओके, अदर साइड आल्सो हैव बीन डिस्कवर्ड एट द लाहौर देवर नियर इन द गंगेटिक प्लेन, ठीक है, बुर्ज़होम इन कश्मीर, ठीक है, चेरनन इन द बिहार, टिकलीहल इन रायचूर, Takkalkota and the Hullur in Karnataka, Piampally in the Tamil Nadu and the Utnur in Telangana. So ये क्या है न्यूलिथिक साइट्स हैं जो कि डिफरेंट स्टेट्स में देखने को मिलती हैं। ओके, नाउ here third topic, domestication of animal. Student please listen the carefully. It should be necessary to you, है ना, to listen to me carefully and the sincerely which I am explaining to you. It will easy to learn the question answers to you if you will listen to me. Okay, then third is domestication of animals. Okay, so when people started farming it also become important to keep useful animal close at the hand. ठीक है, some of the earliest animal that were domesticated by the Neolithic people were cow, sheep, goat and the dogs. जब एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करना था, जो साइट्स डेवलप्ड हुई थी, क्रिएट हो गई थी, बनाई गई थी, तो उसमें बहुत नेसेसरी था कि एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन हो, क्योंकि इनके यूजेस बहुत ही ज़्यादा थे और जो नीड्स थी उसमें फुलफिल करने में ये हमारी हेल्प करते थे। जो न्यूलिथिक साइट्स में जो न्यूलिथिक पीपल्स थे, है ना, जो अर्ली मैन जो न्यूलिथिक साइट्स तक आए थे, उन्होंने किन किन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया था, काऊ को, शीप को, गोट को, है ना। These animals provide a continuous supply of milk, meat and the other dairy products. ये एनिमल्स क्या करते थे, डेयरी प्रोडक्ट्स को डेली क्या करते थे, कंटिन्यूसली उनको डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते रहते थे, ठीक है। Then they used animals in skin to make their clothes. Bullocks, horses and the donkey were later used to plug and the field. Some animal, so they used animal skins to make their clothes. Bullocks, horses and the donkey were later used to plug the fields. Some animal were used to the transportation. ठीक है, कुछ जो एनिमल्स थे वो ट्रांसपोर्टेशन में काम आते थे, बुलॉक्स वगैरह बनते थे, है ना, जो एंड स्किन थी वो क्लोथ्स वगैरह बनाने में उनकी यूज की जाती थी। ओके, सो डोमेस्टिकेशन एनिमल का था वो बहुत ही नेसेसरी था न्यूलिथिक पीपल्स के लिए, क्योंकि उन्होंने उससे बहुत सारी अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल किया था और वो उनके लिए बहुत यूजफुल थे। ओके, नाउ फोर्थ वन, इन्वेंशन ऑफ द व्हील. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. The invention of the wheel was a major landmark of the history of human civilization, है ना। Human civilization में ये सबसे most important invention माना जाता है wheel का। Okay, through this it is not exactly known how to wheel was invented. हमें नहीं मालूम कि exactly ये कैसे invented हुआ था, है ना। But the earlier evidence of the wheel date back 3500 BC in Mesopotamia in present day in the इराक. जो इराक हमारी कंट्री है उसमें मेसोपोटामिया नाम जो प्लेस का है ना, वहाँ पे क्या हुआ था, माना जाता है कि वहाँ पे 3500 BC मतलब बिफोर कॉमन एरा. बिफोर कॉमन एरा इट मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना। वहाँ पे क्या हुआ था, व्हील का इन्वेंशन हुआ था. ओके, द यूज ऑफ व्हील मेड लाइफ इजियर एंड मोर कंफर्टेबल. इससे क्या हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन में सबसे बड़ी हेल्प मिली थी न्यूलिथिक पीपल्स को, है ना। और ये सबसे ज़्यादा मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए और कल्टीवेशन वगैरह के लिए सबसे ज़्यादा
a more comfortable thing थी. Okay, the potter's wheel used to make the better pots. वो wheel का use करते थे. आपने देखा होगा बुलाई में wheels को राउंड राउंड घुमाकर pots वगैरह बनाए जाते हैं. तो बहुत ही important था, है ना, अपने ट्रेड को और भी डेवलप करने के लिए, है ना. एंड द पीपल could now make wheel cart and the carriers to transportation of for the carry roads. ठीक है ना. वो क्या करते थे, लोड जो होता था, मतलब किसी भी चीज का प्रोडक्ट्स प्रिपेयर किए, बनाए, उसको डेवलप किए, फिर उसको एक प्लेस मतलब रखकर उस पर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करना, मतलब ले जाना, उसको सप्लाई करना. तो इसके लिए व्हील क्या था, सबसे बड़ी हेल्प थी व्हील की, है ना. सो इन दिस मैनर invention of wheel also it's two important thing which have done in the Neolithic age. ठीक है ना. Now pottery as people begin, listen, in your book 30 number of page, here I have given some pictures. The invention of the wheel made life easier and the more comfortable for the early human. आप देख सकते हो यहाँ पे कि किस तरीके से early humans जो थे उन्होंने किस तरीके से wheel का डेवलप किया था, wheel को बनाया था, इन्वेंट किया था, और उसका इस तरीके से वो यूज करते थे. Sometime later people made the spinning wheel to spin threads. ठीक है. वो क्या करते थे, इस तरीके से उनको थ्रेड करते थे, मतलब रखकर लोड कर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या करते थे, ले जाते थे. ठीक है. Now pottery. As the people began farming and the living a sheltered life, it was necessary to store grains. ठीक है. क्या होता था, जैसे पीपल्स ने फार्मिंग बिगिन की, मतलब स्टार्ट की, लिविंग इन द सेटल, मतलब सेटल लाइफ में वो रहना स्टार्ट कर दिए ना. इट वाज नेसेसरी टू स्टोर गेन्स. अगर वो किसी प्लेस पर सेटल हो रहे हैं, इट मीन्स अभी हम भी रहते हैं सेटलमेंट्स, मतलब हम भी रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, फॉर द फ्यूचर वी ऑल्सो स्टोर सम थिंग्स, फूड आइटम्स फॉर द फ्यूचर, है ना. हम भी अपने फ्यूचर्स के लिए स्टोर करके रखते थे. ठीक है. सेम दे ऑल्सो हैव डन फूड, मिल्क एंड द वाटर. सो द यूज ऑफ पॉटरी वॉज क्विट कॉमन ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज. ये न्यूलिथिक एज में बहुत ही कॉमन हुआ था पॉटरी, मतलब पॉट्स वगैरह को क्रिएट करना. The Neolithic, with the help of the potter's wheel, people made pots the different shape of size. The early potters were bare. It was soon decorated the painted with the different color and the design. See here I have given the pictures also. इस टाइप के different shapes में क्या करते थे, wheel की help से pots को create करते थे, बनाते थे, और painting के through उसको क्या करते थे, decorate करते थे. Okay. So in this manner they also have created the pottery also, और उन्होंने इसकी skills को, है ना, क्या किया, developed किया था. Now Neolithic age, we have to read about the Neolithic age. So Neolithic tools. Okay, Neolithic tools. Here I am going to be write Neolithic tools. Neolithic tools. So in the Neolithic age, the quality of stone tools and implements improved. है ना. क्या हुआ था इस एज में, जो क्वालिटी ऑफ स्टोन टूल्स की थी, मतलब स्टोन टूल्स जो बनाए गए थे, जो इम्प्लीमेंट्स मतलब जो चीजें बनाई गई थी, टूल्स बनाते जा रहे थे, वो इम्प्रूव्ड हो चुके थे. मतलब पहले से पियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज में जो टूल्स प्रिपेयर किए थे, उनसे कहीं अच्छे टूल्स किस में बनाए गए थे, न्यूलिथिक एज में डेवलप्ड किए गए थे. The stone tools were well shaped, well polished and had a sharp cutting edge. उनको बहुत अच्छे से पॉलिश किया गया था, उनकी एज मतलब शार्प्स बनाए गए थे उनको, है ना. Cells of different size have been found in the different Neolithic sites. Cells means जब हम फार्मिंग करते हैं, किसी चीज को डिग करते हैं, तो कुल्हाड़ी यूज करते हैं ना. तो इट इज अ टूल ऑफ लाइक द कुल्हाड़ी, है ना. जो कुल्हाड़ी होती है, होती है, उसके अकॉर्डिंग उसके जैसे एक टूल प्रिपेयर किया था, सेल्ट. ठीक है. Neolithic age में people particularly use stone axe, plugs and the sickles which have them the farming. वो tools का use करते थे जो उनको help करती थी farming के लिए, and which have them in a farming. They used a small rounded stone which was placed one another large flat stone to crush grains. Bone tool were also widely used. जो bone tools थे, bone tools मतलब जो animals थे जिनका वो शिकार करते थे, है ना, हंटिंग करते थे, तो उनकी जो बोन्स होती थी उसके भी टूल्स प्रिपेयर किए गए थे. तो वो भी बहुत वाइडली यूज किया गया था न्यूलिथिक एज में, है ना. और जो स्टोन्स वगैरह थे वो फार्मिंग और कल्टीवेशन में भी उनके जो टूल्स बनाए गए थे उनको यूज करते थे. ओके. नाउ हाउसेस. So houses.
Agriculture and domestication of animal lead to significant change in the life of Neolithic people. ठीक है, जो एग्रीकल्चर था और डोमेस्टिकेशन था, वो एनिमल्स, जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था, वो लीड करता है सिग्निफिकेंट, मतलब एक बहुत ही बड़ा साइन देता है किस चीज का, जो चेंजेस हुए थे किसके पीपल, न्यूलिथिक पीपल्स की लाइफ में. ओके, दे गेव अप द नोमेडिक लाइफ स्टाइल एंड सेटल डाउन इन द सेफ एंड द कंफर्टेबल हाउसेज. उन्होंने क्या की थी, अपनी नोमेडिक लाइफ मतलब जो नोमेड्स होते हैं, नोमेड्स पीपल इट मीन्स जो पीपल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं फॉर सर्चिंग फूड्स एंड द वाटर एंड बेसिक नीड्स, है ना, फुलफिल द बेसिक नीड्स. तो उनके जो पीपल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते हैं वो कहलाते हैं नोमेड. और जो अर्ली मैन थे उन्हें अपनी नोमेडिक लाइफ को छोड़कर, है ना, चेंज करके डेवलप करके एक सेटल लाइफ को क्या किया था, डेवलप किया था. ठीक है, द हाउसेज इन द न्यूलिथिक एज वर वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम दोज इन द प्योलिथिक एंड द मेसोलिथिक पीरियड. मड हाउसेज विद द thatched roofs and the plaster coated on the walls started appearing. Many houses in the same locality formed a village. उन्होंने क्या किया था, मड हाउस मतलब मड का यूज किया था, है ना, ऊपर क्या करते थे, रूफ्स वगैरह का यूज करते थे, प्लास्टर कोट किया था वॉल्स पर, मतलब जो इस टाइप का एक विलेज क्रिएट होता है उसमें शेल्टर्स प्रिपेयर कर दिए जाते हैं, घर बना दिए जाते हैं, हाउस बना दिए जाते हैं, वो वैसा ही उन्होंने टोटली अपने उसको जो भी उनका लोकेशन था उसमें उन्होंने उसको डेवलप कर लिया था. सी in the book also have given the picture the reconstruction of the house from the Neolithic age. इस टाइप का एज उन्होंने डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था. ओके, नाउ सोशल लाइफ. सोशल लाइफ, द न्यूलिथिक पीपल बिगेन टू लिव इन अ ग्रुप इन अ स्मॉल विलेज. उन्होंने एक विलेज क्रिएट किया और उसमें क्या करते थे, ग्रुपिंग. इट मीन जब भी हम अपने निकलते हैं कॉलोनीज वगैरह में, तो हम भी ग्रुप में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, मतलब ग्रुप में रहते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, है ना. Same as the group that live together become close knit, they develop into tribes. और वो क्या होने लगे, एक दूसरे के पास रहने लगे, मतलब नियर बाय. जैसे हमने कॉलोनी बनाई तो कॉलोनीज को ऐड करके एक विलेज क्रिएट हो गया, ब्लॉक क्रिएट हो गया, है ना. और वो किस में कन्वर्ट हो गया, ट्राइब में. ट्राइब मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पे पीपल्स क्या करने लगे, ग्रुप बनाकर रहने लगे, है ना. लार्ज नंबर ऑफ जो ग्रुप्स होते हैं ना उनको बनाकर रहने लगे. ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, वो ट्राइब्स में कन्वर्ट हो गया. ट्राइब्स मतलब कि एक प्लेस पर रहते थे, सेटल कर लिया और अपना खुद के क्या कर लिया, एक कास्ट डेवलप कर ली, है ना, अपना एक कल्चर डेवलप कर लिया, तो वो क्या हो गया, ट्राइब हो गया. ठीक है, this lead to new occupation and the specialization of labor. People were given specific tasks based on the certain skills. ठीक है, जिस पीपल्स के पास जो भी स्किल होती थी उसके थ्रू वो क्या करता था, ऑक्यूपेशन को स्टार्ट करता था, उनको ऑक्यूपेशन होता था. दिस लीड टू बेसिक फॉर द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू वेरियस ग्रुप्स. सम वर engaged in tasks such as the farming, herding and the weaving, and the other who were not engaged in many form of labor took decisions related to the welfare of the tribe. ठीक है, कुछ पीपल्स क्या करते थे, फार्मिंग करते थे, है ना, दैट दे हैड स्टार्टेड द कल्टीवेशन फार्मिंग इट मीन्स, है ना. और क्या करते थे, अदर वर्क में जो उनके पास स्पेशल स्किल्स थी, पॉटरी वगैरह बनाना, टूल्स वगैरह बनाना, वो करते थे. और जो नहीं करते थे अदर पीपल्स, वो जो उनके वेलफेयर मतलब उनके विलेज के वेलफेयर के काम होते थे उनको हैंडल करते थे. ओके, सो इन दिस मैनर the tribe had rich culture tradition with their own language, stories, songs, painting and etc. तो इस बेस पर उन्होंने खुद का एक कल्चर डेवलप कर लिया, स्टोरीज हो गई उनकी, है ना, उन्होंने अपने एक रीजन क्या कर दिया, क्रिएट कर लिया. अंडरस्टूड. New customs such as bearing to deed, rituals and the ceremonies emerged. Elaborate tombs have been found in the Neolithic site in Europe. Let us read about the tribe which closed the nature even today. मतलब कि उन्होंने इस कस्टम्स के चलते हुए ड्यूरिंग टू दैट, मतलब जो पीपल्स डेड हो जाते थे, है ना, जिनकी डेथ हो जाती थी, उनकी ब्यूरियल्स होती थी, कुछ पीपल्स क्या कर देते थे, उनको दफना देते थे, कुछ क्या करते थे, उनको अग्नि दे देते थे. इट मीन्स उन्होंने उसके थ्रू एक रिटर्स हो जाती थी, उनकी सेरेमनी उन्होंने क्रिएट करना स्टार्ट कर दी थी. टोटल इट मीन्स उनका जो सेटलमेंट था जो अभी हम फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो स्टार्ट हो चुका था उस एज में. सो हम कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, केसेस पढ़ेंगे जो हमारे अभी अपने आसपास हैं. ठीक है, नाउ केस स्टडी. द सेंटाइनलेस आर द इंडिजीनियस ट्राइब इन द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड. ठीक है, ये सेंटाइनलेस क्या है, एक ट्राइब है. ट्राइब मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं. ठीक है, इन्होंने अपना एक ट्राइब था. तो ये ट्राइब्स कहाँ पाई जाती है, पीपल्स कहाँ पाई जाती है इस ट्राइब के, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में.
ओके, दे आर बिलीव टू बी द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स, मतलब वो किस पर बिलीव करते हैं, डिसेंडेंट्स, इट मीन्स कि जो पीढ़ियां चलती आती है, मतलब हमारे ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर थे, मतलब इट मीन्स ग्रैंडफादर फादर, फिर हम हुए, फिर हमारे जो किड्स होंगे वो बढ़ेंगे आगे, है ना, तो उसमें वो बिलीव करते थे। ओके, अफ्रीकन व्योगर्स डेटिंग बैक टू द प्री हिस्टोरिक era, they are believed to have inhabited the North Sentinel Island, the Great Andaman for the more than 60,000 ईयर। वो मानते थे जो अंडमान निकोबार है वहाँ के जो प्लेसेस थे, ठीक है, वहाँ पे 60 मतलब 60,000 ईयर पहले से वो मतलब चलते आ रहे हैं, वो ऐसा समझते थे, ठीक है। मोस्ट एक्सपर्ट बिलीव द ट्राइब डेट्स बैक टू द स्टोन्स एज एंड दे मेक टू द स्टोन ऑफ द मेटल। और कुछ जो मतलब आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी इस बात पर बिलीव किया है कि जो पीपल्स है वो स्टोन एज से जो पीपल्स आ रहे हैं ना, उनके वंशज चले आ रहे हैं, वो उसी ऑक्यूपेशन को फॉलो करते जा रहे हैं। ओके, so this tribe resident contact with the outsider, often treating visitor and the boss and the oros, जो बाहर से आते थे साइट्स को घूमने के लिए ना, विजिट करने के लिए, उनको इस सब के बारे में बताना, ये सब उन पीपल्स ने क्या किया था, डेवलप किया था। ओके, the Sentinels are essentially a hunting gathering community, but उनकी जो hunting gathering community थी वो खत्म नहीं हुई थी, hunting तब भी चल ही रही थी। ओके, their main occupation are fishing main occupation बन गया था, hunting बन गया था, collecting wild plants बन गया था, है ना, wild plants को collect करना, ठीक है। there is no evidence of agriculture practices. They live in a small hut with no side wall and the sheep sleep on leaves spread on the floor, ठीक है। वो क्या करते थे ट्राइब्स में, उनके पास कोई हाउसेस नहीं होते थे, पर वो क्या लीव्स वगैरह को वो किया और उस पर लेट कर वहीं रह रहे हैं, है ना। जनरली जो जैसे फॉरेस्ट में लाइफ वो करते हैं, ऐसे उन्होंने वहां पे स्प्रेड करना मतलब स्टाइल अपना रहना स्टार्ट कर दिया था। ओके, the Sentinelese tribe make use the item that the washed up assured their various needs, ठीक है। बोरोज, एरोज कॉमनली, है ना, जो हंटिंग के लिए यूज होते थे, इन सब की चीजें उन्होंने क्या कर दी थी, डेवलप करना स्टार्ट कर दी थी। अंडरस्टूड? तो ये क्या था, सेंटाइनल्स था, इट मीन्स ये एक ट्राइब थी जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पाई जाती है। उनके बारे में बताया कि वो किस तरीके से रहते थे वहां पे। नाउ सेकंड केस स्टडी, न्यूलिथिक साइड नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट की साइड न्यूलिथिक साइड पड़ती है, वहां का एक केस स्टडी है मेहरगढ़। ओके, सो मेहरगढ़ में क्या था, मेहरगढ़ इन अ न्यूलिथिक साइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है ये, ठीक है। इज अ साइट डेटिंग बैक द अबाउट 7000 to 32 BCE, ठीक है, 7000 to 32 BCE, बिफोर द कॉमन एरा। ओके, इट इज लोकेटेड इन द कांची प्लेस ऑफ द बलूचिस्तान, प्रेजेंट डे इन द पाकिस्तान, ठीक है। एक बलूचिस्तान प्लेस है, वहां पे है ये साइट डेवलप्ड है, ओके, जो कि पाकिस्तान में आता है। दिस साइट शो द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फार्मिंग एंड द हार्डिंग इन द साउथ एशिया, ठीक है। इसका ये ग्रेटेस्ट एविडेंस प्रोवाइड मिलता है जो कि साउथ साइड में क्या होता था, साउथ एशिया में, नॉट साउथ साइड, साउथ एशिया में ये डेवलप्ड हुआ एविडेंस है, ये जो साइट वहां पे डेवलप्ड हुई। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड द साइट इनटू 7 पीरियड्स, उन्होंने साइट्स को 7 पीरियड्स में, किसने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, आर्कियोलॉजिस्ट मींस दोज आर स्टडीइंग अबाउट द पास्ट, है ना, तो उन्होंने क्या किया था, इसको 7 पीरियड्स में डिवाइड किया था। विच आर दे, द फर्स्ट बीइंग द प्री पॉटरी न्यूलिथिक पीरियड, है ना, दैट डेट्स बैक टू अबाउट 7000 BC, एक था प्री पॉटरी, ठीक है, जो 7000 से पहले था, BC से पहले था। दे आर द opinion that the site was abounded sometime between 2500 BCE to 2000 BCE, ठीक है। उन्होंने बताया कि जनरली इसका जो पीरियड था वो 2500 BCE से 2000 BCE था, ठीक है ना। एंड द अर्ली इनहेबिटेंट्स ग्रो बर्ली वीट द डेट्स, उन्होंने बताया कि उस टाइम पे ये क्या करने लगे थे, बर्ली वीट्स को क्या करने लगे थे, ग्रो करने लगे थे। ओके, नाउ बाय 6000 BC हैंडमेड पॉटरी मेड एंड द अपीयरेंस, जब 6000 BC का टाइम था तब वो हैंडमेड पॉटरी, व्हील का इन्वेंशन हो चुका था, तो वो हैंडमेड क्या करने लगे थे, पॉटरी वगैरह, पॉट्स वगैरह बनाना शुरू कर चुके थे, ठीक है। टेराकोटा फिगर्स दैट द पॉटरी विद एक्सोटिक geometric designs have also been found along with the ornaments of beads, seashells and the semi precious stone like lips lazuli, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया था, टेराकोटा एक डिजाइन का नेम है, ठीक है, टेराकोटा। उन्होंने पॉट्स वगैरह में वो टेराकोटा डिजाइन क्या किया था, डेवलप किया था, क्रिएट किया था, ठीक है। वो एक डिफरेंट
एक डिजाइन है जो कि उस टाइम पर पॉट्स वगैरह में क्या की जाती थी, बनाई जाती थी। ओके, और ऑर्नामेंट्स वगैरह में बनाते थे, सीशेल्स वगैरह जो आते थे मिलते थे उनमें वो क्रिएट करते थे, उनसे क्रिएट करते थे। ओके, सो इस टाइप के मैन्युफैक्चरिंग क्या था, मतलब किया था। और फिर उसके बाद क्या था, एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड चला, मतलब बिजनेस स्टार्ट हो गया था, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चीजों को, प्रोडक्ट्स को क्या करना, सेल करना, यहाँ वहां से उनको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने का काम वो स्टार्ट कर चुके थे इस एज में।